ರೂಪವ ಧರಿಸಿ वीतरागतेय रूपವ ಧರಿಸಿ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಚೇತನವನು ತಾ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಚೇತನವನು ತಾ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕಾರ್ಯ ಮನೆ ಮಾರವ ತೊರೆದು ರಾಜಕಾರ್ಯ ಮನೆ ಮಾರವ ತೊರೆದು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದಲೆ ಭ್ರಮಿಸಿದೆನು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದಲೆ ಭ್ರಮಿಸಿದೆನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮರೆತೆನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು ಮರೆತೆನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು कोशिश कर सकते हैं ಮರೆತೆನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು ಮರೆತೆನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು ಪರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಪರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವೆನೆಂಬ ಮಿಥ್ಯಾ ಭ್ರಮೆಯಲಿ ಭ್ರಮಿಸಿದೆನು ಭ್ರಮೆಯಲಿ ಭ್ರಮಿಸಿದೆನು ಪರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗದಿ ಪರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗದಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆನು ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆನು ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆನು ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆನು ಧರ್ಮರಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಲೇ ಧರ್ಮರಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಲೇ ನನ್ನನು ನಾನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟೆನು ನನ್ನನು ನಾನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟೆನು ಮನುಜಾದಿಗಳ ದೇಹವ ಪಡೆಯುತ್ತ ಮನುಜಾದಿಗಳ ದೇಹವ ಪಡೆಯುತ್ತ ಪಂಚಪರಾವರ್ತನ ತಿರುಗಿದೆನು ಪಂಚಪರಾವರ್ತನ ತಿರುಗಿದೆನು ಪಂಚಪರಾವರ್ತನ ತಿರುಗಿದೆನು ಪಂಚಪರಾವರ್ತನ ತಿರುಗಿದೆನು ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವನು ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವನು ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಆಕುಲತೆಯಲಿ ಕಾಲವ ಕಳೆದೆನು ಆಕುಲತೆಯಲಿ ಕಾಲವ ಕಳೆದೆನು ನ್ಯಾಯಕ ರೂಪವ ರಕ್ಷಿಪೆನೆಂದು
ಮನವಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದು ಏನೋ ಮನವಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದು ಏನೋ ಮನವಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದು ಏನೋ ಮನವಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದು ಏನೋ ಚೇತನ ನಿನ್ನೊಳು ಎಚ್ಚರು ನೀನು ಚೇತನ ನಿನ್ನೊಳು ಎಚ್ಚರು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವ ಮಾಡಿಕೊ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವ ಮಾಡಿಕೊ ನೀನು ನಾನಂತು ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾಯಕ ರೂಪನು ನಾನಂತು ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾಯಕ ರೂಪನು ಸಾರವ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇದು ಜಿನವಾಣಿ ಸಾರವ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇದು ಜಿನವಾಣಿ ಸಾರವ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇದು ಜಿನವಾಣಿ ಸಾರವ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇದು ಜಿನವಾಣಿ ವೀತರಾಗತೆಯ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ನಿಜ ರೂಪವನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಚೇತನವನು ತಾ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಚೇತನವನು ತಾ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಲವರ ವೀರ ಜಿನರಿಗೆ ಮಂಗಲವು ಗುರು ಗೌತಮಾಂಗಗೆ ಮಂಗಲವು ಸಿರಿ ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಂಗಲವು ಚಿರ ಸಮಯ ಸಾರಕ್ಕೆ ಮಂಗಲವು ನಿಜ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗೆ ಮಂಗಲವು ಜಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮ ಮಂಗಲವು ಮಂಗಲವು ಜಿನ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮ ಮಂಗಲವು ನಮೋ ಅರ್ಹಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ಪೂರ್ವಚ್ಛಾಯಾಣಂ ನಮೋ ಲೋಕೆ ಸೌವಸಾಪೂರ್ಣಂ ನಮಃ ಶ್ರೀವರ್ಧಮಾನಾಯ ನಿರ್ಧೂತಕರ್ಯಾತ್ಮನೆ ಸಾಲೋಕಾನಾಂ ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ಯದ್ವಿದ್ಯಾದರ್ಪಣಾಯತೆ ಯದ್ವಿದ್ಯಾದರ್ಪಣಾಯತೆ ये रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। इधर सम्यक दर्शन का उपाय बता रहे हैं। सम्यक दर्शन तो आप्त आगम तपोभृत के ऊपर 3 मूढ़ता रहित श्रद्धा, 6 अनायतन रहित श्रद्धा और 8 अंग सहित श्रद्धा जो है वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ही धर्म के लिए, सुख के लिए, संसार से परिमुक्त होने के लिए पहला उपाय, पहला सोपान सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के साथ ही अपने अंदर जितना ज्ञान है वह सम्यक हो जाता है। सम्यक दर्शन जिस समय होता है दीप और प्रकाश के तरह सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान का उत्पत्ति होती है और सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ स्वरूपाचरण चारित्र भी होता है। अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता।
सम्यक दर्शन के साथ जितने ज्ञान है वो सब ज्ञान सम्यक हो जाता है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जीव के परिणति जो है वह स्वरूप अनुसरण हो जाता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों साथ ही रहते हैं, एक को छोड़कर एक नहीं रहते। फिर चारित्र में भेद तो है, स्वरूपाचरण चारित्र है, देश चारित्र है, सकल चारित्र है, यथाख्यात चारित्र है, भेद तो है, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होता है। देश चारित्र के समय भी स्वरूपाचरण चारित्र रहता है, सकल चारित्र के समय भी स्वरूपाचरण चारित्र रहता ही है। देश चारित्र और सकल चारित्र पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत धारण करने का, पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत को परिपालन करने का नाम है। लेकिन उसके साथ स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है तो वो पंच अणुव्रत का धारण कर्म निर्जरा करने में समर्थ नहीं है। पंच महाव्रत का भी जो परिणाम है, स्वरूपाचरण चारित्र के बिना पंच महाव्रत रूप भी जो चारित्र है वो बंध का ही कारण है। अलग शब्द से बताएंगे तो निश्चय व्रत शुद्धोपयोग है, निश्चय व्रत से शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति कहो। शुद्ध परिणति जो है, शुद्ध परिणति से ही शुद्धोपयोग उत्पन्न होता रहता है। शुद्धोपयोग के लिए शुद्ध परिणति अखंड है। वो शुद्ध परिणति सम्यक दर्शन के समय में प्रकट हो जाता है और पूर्ण रूप से स्वभाव में उपयोग जब तक स्थिर नहीं होता तब तक अखंड अविचल धारा से रहता है। उसे ही भेद विज्ञान धारा ऐसे भी समय सार में कहा है। भेद विज्ञान धारा जो है संपूर्ण ज्ञान में जब तक निमग्न नहीं होता तब तक भेद विज्ञान धारा चलती रहती है। उसी भेद विज्ञान धारा को शुद्ध परिणति भी कहते हैं। शुद्ध परिणति और भेद विज्ञान धारा दोनों में अंतर नहीं है। भेद विज्ञान या शुद्ध परिणति ये दोनों शब्द आत्मा के अनुभव सहित आत्मा को भिन्न पदार्थों से, भिन्न भावों से अलग रखते हैं। भिन्न पदार्थों से, भिन्न भावों से, समयवर्ती भावों से। पदार्थ तो आत्म पदार्थ तो भिन्न ही है, लेकिन भिन्न का जानपना चालू रहता है, भिन्न का श्रद्धा ज्ञान का परिणमन चालू रहता है। उसे ही शुद्ध परिणमन कहते हैं, शुद्ध परिणति कहते हैं। उसके बल से ही, उसके आधार से ही शुद्धोपयोग रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। आत्मा के जब अनुभूति होते हैं वह अनुभूति एक समय की रहती है। और पंचम गुण स्थान में भी अनेकानेक व्रत का अंगीकार, 12 प्रकार का व्रत तो है, अनेक अतिचार रहित जो व्रत का परिपालन होता है, उस व्रत का परिपालन के समय वो शुद्धि की वृद्धि ही होती रहती है। अंतरंग में भेद विज्ञान की धारा जो है वही बढ़ती रहती है। अब तक जो नियम सार के विषय आपने सुना, क्या बताया उसमें? किस नई से भेद जानूं, किस नई से भेद जानूं, सिद्धों में और संसारियों में। 49वां गाथा है, किस नई से भेद जानूं। गुरुदेव का अद्भुत प्रवचन है उस गाथा के ऊपर। किस नई से प्रभु, किस नई से भेद जानूं, सिद्धों में और संसारियों में। किस नई से जानूं, इसका मतलब क्या है? किस नई से जानूं प्रभु, किस नई से भेद जानूं, सिद्धों में और संसारियों में। किस नई से? मेरे पास तो एक शुद्ध नय ही है। मेरे पास तो आचार्य भगवंतों का, पद्म प्रभ मलधारी देव का भाव ये है,
वचन का तात्पर्य ये है, मेरे पास तो एक शुद्ध नहीं है, किस उस शुद्ध नहीं में भेद तो नहीं है, सभी सिद्ध और संसारी, इस प्रकार का भेद नहीं है। सभी सिद्ध है ऐसा भी नहीं जानते हो, सभी सिद्ध, सिद्ध तो पर्याय है ना, सिद्ध तो पर्याय है, किस सिद्धों में और संसारी जीवों में किस नहीं से भेद जानूं, किस नहीं से, मेरे पास तो एक शुद्ध नहीं है, उस शुद्ध नहीं का विषय परम पारिणामिक भाव स्वरूप, कारण परमात्मा स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, एक न्यायक भाव ही है। शुद्ध नहीं का विषय कौन सा है? शुद्धात्म द्रव्य ही है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा ही है। तो सिद्ध है, ये सिद्ध है, ये संसारी है, ये पंचेंद्रिय है, ये विकलेंद्रिय है, एक एकेंद्रिय है, कैसे जानूं? इसका मतलब जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब पर्याय दृष्टि छूट जाती है, पर्याय दृष्टि छूट जाती है। गुरुदेव का वचन है ना, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर, वो तो है, गुरुदेव का वचन है क्षमावाणी के समय। हाँ, यदि मैंने किसी भी जीव को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। कौन क्षमा करेगा? कौन क्षमा करेगा? अपने आप में अक्षम्य अपराध है वो, अपने आप में अपने लिए अक्षम्य अपराध है किसी जीव को पर्याय दृष्टि से देखना। आत्मा का अनुभव जिस समय होता है उस समय उन्हें द्रव्य दृष्टि आ जाता है, जीव को द्रव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है। रहा सवाल पर्याय रहने का, ध्रुव के घर में पर्याय को रहने के लिए जगह नहीं। विषय तो अत्यंत प्रिय है, मेरे विषय से थोड़ा अलग हटकर बताना पड़ता है, लेकिन विषय बहुत प्रिय है मुझे। मेरे ध्रुव रूपी घर में, पर्याय रूपी घर में ध्रुव के अलावा मेरे लिए भी जगह नहीं। इसका मतलब क्या है? बाबूजी का बात है। इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन रूपी जो पर्याय है, जो पर्याय सम्यक रूप हुआ है, सम्यक दर्शन का मतलब जो पर्याय सम्यक रूप हुआ है, जो पर्याय अपने अनादि मिथ्यात्व को छोड़ दिया है, उस पर्याय के विशाल घर में, पर्याय का घर कितना विशाल है, पर्याय का घर कितना विशाल है। एक समय की असंख्यात पर्याय का घर एक समयवर्ती है पर्याय। ये द्रव्य और पर्याय की चर्चा इतना मधुर है, द्रव्य और पर्याय की चर्चा इतना विस्तृत है, हम जिंदगी भर समझेंगे तो भी आनंद ही आनंद आएगा, उसमें कभी भी असंतोष नहीं होगा। पर्याय का कितना, पर्याय का घर कितना बड़ा है। देखिए, हमने द्रव्य की महिमा तो बहुत सुनी है, सुनना भी चाहिए, द्रव्य की महिमा आना भी चाहिए। द्रव्य के गुणगान तो बहुत किए हैं हमने, लेकिन द्रव्य तो कैसा है, कूटस्थ है ना। द्रव्य तो अनादि से मौन, मूक है। मूक समझते हैं? बोल नहीं बोलते नहीं, वह मौन, बोल नहीं सकते वो मूक। मूक शब्द है आप में। द्रव्य कैसे है? मूका है। द्रव्य कैसा है? कूटस्थ है, कहाँ आती जाती नहीं, किसी भी पदार्थ को देखते नहीं, किसी भी पदार्थ के साथ अपनत्व का स्थापन नहीं करते, किसी भी पदार्थ को जानती नहीं।
किसी भी पदार्थ के साथ किसी भी पदार्थ का अनुभव नहीं करते। द्रव्य तो ऐसा है, लेकिन पर्याय कैसा है? पर्याय का सामर्थ्य कितना है? पर्याय का सामर्थ्य, पर्याय का स्वभाव तो संवेदन रूप है। पर्याय का स्वभाव तो संवेदन रूप है, लेकिन सामर्थ्य कितना है? सामर्थ्य कितना है? वो जो त्रिकाली द्रव्य है ना, काल सापेक्ष तीनों काल एक प्रकार रहने वाले हैं। द्रव्य कैसा है? तीनों काल एक प्रकार, सदृश 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 रहने वाली जो द्रव्य है, वो द्रव्य में जो अनंत 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 गुण है। अनंत की परिभाषा कल गुरुदेव के प्रवचन में आया था। अनंत गुणले अनंत, अनंत गुणले अनंत, अनंत बार करने पर भी ये जीव द्रव्य में जितने गुण है वो संख्या नहीं आएगा, उतना है। तो पर्याय का सामर्थ्य कितना है, ये मूल्यांकन कर रहे थे हम। पर्याय का सामर्थ्य कितना है? तीनों काल रहने वाली निज द्रव्य को, द्रव्य में रहने वाले अनंत 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 गुणों को पृथक पृथक होते हुए भी अभेद रूप जो गुण रहते हैं, पृथक पृथक है फिर भी अभेद रूप से रहते हैं, उन सब गुणों की स्वाद चखाने का सामर्थ्य एक समय के पर्याय है। गुण अपने को नहीं जानता, द्रव्य अपने को नहीं जानता, द्रव्य गुण को नहीं जानता। धारण किया है, किया हुआ है, ये बात अलग। द्रव्य पर्याय को धारण किया हुआ है, ये बात अलग। लेकिन गुण, द्रव्य पर्याय को, गुण को नहीं जानता, गुण स्वयं को नहीं जानता और द्रव्य को भी नहीं जानता। अभी परिभाषा आपने नहीं बताया तत्वार्थ सूत्र का। द्रव्याश्रया गुणा निर्गुणा। निर्गुण कैसे है? द्रव्य के आश्रय से है, लेकिन एक गुण में अनेक गुण नहीं है। ये सब द्रव्य की परिभाषा है, द्रव्य की संपत्ति है। और जो द्रव्य के समय समय के पर्याय है, वो पर्याय की सामर्थ्य इतनी है, पर्याय के बिना किसी भी गुण का कोई भी मूल्य नहीं है। पर्याय के बिना किसी भी गुण का कोई भी मूल्य नहीं है। पर्याय के बिना द्रव्य का मूल्य नहीं है। पर्याय के बिना पर पदार्थ से पृथकत्व का कोई अर्थ नहीं रहता। वस्तु तो अन्य वस्तु से पृथक ही है, पृथक ही है। एक के साथ अन्य वस्तु के, एक वस्तु के साथ अन्य वस्तु का कोई भी संबंध नहीं है। पंचास्तिकाय का विषय है, एक द्रव्य के प्रदेश का स्पर्श दूसरा द्रव्य का प्रदेश नहीं करता। प्रदेश, एक द्रव्य का प्रदेश का स्पर्श दूसरा द्रव्य का प्रदेश नहीं करता, तो प्रवेश कैसे होगा? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। और एक बात, एक आकाश के प्रदेश में 6 द्रव्य रहते हैं, तो स्पर्श किया या नहीं? स्पर्श किए बिना एक समय, एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है। एक परमाणु जितने क्षेत्र में रहे उसे एक प्रदेश कहते हैं। तो एक प्रदेश में एक परमाणु रह गया, अन्य प्रदेश में दूसरा द्रव्य रह गया, ऐसा है? परमाणु कितने हैं? पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। जीव कितने हैं? अनंत। जीव अनंत है। थोड़ा शांति से, स्थैर्य से वस्तु स्वरूप के बारे में कभी कभी सोचना चाहिए। द्रव्य कितने हैं? जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। आकाश के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है ना।
आकाश के प्रदेश सापेक्ष सबसे बड़ा द्रव्य आकाश है। प्रदेश के क्षेत्र सापेक्ष हाँ आकाश सबसे बड़ा द्रव्य है। लेकिन लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेश है ना लोकाकाश। असंख्यात प्रदेश में असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव द्रव्य कैसे रहते हैं? असंख्यात प्रदेशी आकाश में असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव द्रव्य कैसे रहते हैं? जीव का प्रदेश कितना है? असंख्यात है ना। जीव का प्रदेश असंख्यात, उद्गल का प्रदेश उद्गल एक प्रदेशी भी है, अनेक प्रदेशी भी है, असंख्य प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है। तो असंख्यात प्रदेश क्षेत्र में, आकाश रूपी क्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी अनंत द्रव्य कैसे रहते हैं? और उससे अनंत होने तो पुद्गल द्रव्य कहाँ रहते हैं? एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य और लोकाकाश प्रदेश प्रमाण कालन सब कैसे रहते हैं? अन्योन्य भाव से रहते हैं। 85 का एक गाथा है, अन्योन्य भाव से उस तरफ खिसको, ऐसे किसी भी द्रव्य को नहीं करता। हम एक मनुष्य जीव एक फुट जगह के लिए, एक फीट, फुट कहते फीट कहते हाँ, एक फीट जगह के लिए कोर्ट जाता है। और वस्तु व्यवस्था ऐसी है, एक फीट जगह के लिए, 3 फुट जगह के लिए कोर्ट में हमारे यहाँ गए हैं जैन, तो हम वस्तु स्वरूप को मानने वाले या जिन भगवान को जानने वाले, जिन भगवान को आराधने वाले है क्या? एक बात विषय थोड़ा समय बाजू में रखते हैं। जिस दिन हमने यहाँ आए, ओ बागली ना द्वार पर लिखे हुए थे बिजली का बटन बंद करना, पानी का नल देखना, फ्लैश का प्रत्येक लिखा हुआ है। अरे इधर तो जैन ही आते हैं या अजैन भी आते हैं? मुझे विचार आए, अजैन भी आते हैं यहाँ? आते हैं क्या रूम में? बेंगलोर संस्था में तो आते हैं, क्योंकि वो धर्मशाला है, कोई भी जीव आते हैं, ठहरते हैं, मंदिर के समीप है। किसी भी जीव, किसी भी मत वाले जीव, किसी भी काम के लिए उधर सुविधा है और सस्ता है, इसलिए आते हैं। उधर ऐसा लगाते तो अच्छी बात है, योग्य है। इधर जैन ही आते होंगे ना, तो जैनों के लिए उस प्रकार की वो चिट्ठी लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे उस दिन सोचा था और आज सोच रही हूँ, हम सब आए हुए दशलक्षण पर्व के लिए आए हैं या किस काम के लिए आए हैं? दशलक्षण पर्व में घर छोड़ने का मतलब क्या है? दशलक्षण पर्व में घर छोड़ने का मतलब क्या है? आरंभ हिंसा कम करना, मूल आरंभ हिंसा से बचने के लिए तो इधर बताना पड़ता है व्यवस्थापकों को। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। वो तो बहुत सज्जनताशील से बताया, लेकिन हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। मैंने पहले ही दिन बताया, 3 लीटर पानी में हमारा पिताजी स्नान करते थे। 4-4.5 लीटर पानी में अपने कपड़े अपन स्वयं धो लेते थे। 75-76 साल पर्यंत यही अण्णा जी का याद तो आते ही है। टेबल के ऊपर चढ़कर बरसात के दिनों में, पिछवाड़े में जगह है, लेकिन बरसात के दिन में क्या करना, अंदर ही सुखाना पड़ता है ना। बेलगाम में तो 2-3 महीने बरसात रहते हैं, तो अंदर ही ऐसे रॉड्स लगाया हुआ है। उधर टेबल के ऊपर चढ़ के धोती उधर सुखाने के लिए डाल रहे थे। अन्ना जी ने बताया, पाटिल जी ये सब इस एज में अच्छी बात है क्या? वो सब है, हमारे ही है ना, सब है ना। कौन? हम वगैरह, बच्चे वगैरह।
पिताजी के बच्चे, पिताजी के पत्नी, सब करना धर्म है ना उनका? नहीं अन्ना जी, धर्म कैसे रखते हैं? जितना दूसरे जीवों का उपकार जितना हम अपने ऊपर लेंगे, उस उपकार का बदला चुकाए बिना मोक्ष नहीं होता। उपकार का उतारने बिना मोक्ष नहीं होता। और मैं मोक्ष जाने में वृथा विलंब नहीं करना चाहता। 4-4.5 लीटर पानी में वो अपने धोती, बनियान, टॉवेल स्वयं धोते थे स्नान के समय ही, और वो स्वयं सुखाते थे, और सूखने के बाद स्वयं घड़ी करके रखते थे। पानी बाहर से लाना पड़ता था। बाहर से माने हमारे कंपाउंड में ही जो नल है ना, वो नल अभी थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने जो कष्ट करना था वो कर लिया, हमारा जो आराम करना है वो हमें मिल गया। लेकिन आराम करते हुए हमें पाप हो रहा है, कष्ट करते हुए उन्हें पाप का निर्जरा होती थी। वो 3 लीटर का एक कलशी उन्होंने स्वयं भर के अंदर लाने वाले। क्यों हम ये सब लाते? मैं भी पीता हूं ना पानी। धर्म क्षेत्र पे नहीं है, धर्म वेश बदलने में नहीं है, धर्म भाषा आचार्यों की शब्द बोलने से धर्म नहीं होता। धर्म अंदर से आया तो कर्म नष्ट होगा, धर्म बाहर से आया तो धर्म ही नष्ट होगा। अंदर का धर्म नष्ट हो जाता है, बाहर से धर्म लाने का प्रयास करेंगे तो जितनी कम हो सकती है उतनी हिंसा कम करनी चाहिए हर समय। क्यों? क्योंकि उसका सब फल अपन स्वयं ही भोगने वाले हैं। कभी भी ऐसे पांव पसार के नहीं बैठे थे हमारे पिताजी, हमने नहीं देखा। 24 तास उनके साथ रहते थे ना, हमने नहीं देखा। शरीर का संकोच विस्तार, ऐसे हाथ कर करके बोलना कभी नहीं। इतना ही उनका, बस इतना ही हाथ हलता था। कभी भी वो धूप के गर्मी में कैसे कैसे हम करते हैं ना, बैठते थे तो ऐसे पद्मासन में ही बैठते थे। पद्मासन बोले अर्ध पद्मासन है ना, आप लोग सिद्धासन भी बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं, वैसे ही बोलते बैठते थे। नहीं तो कुर्सी के ऊपर अपने काम करते रहते थे, लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, वाचना, अपना काम कितने करते थे? 76 के साल में, 76 के साल के एज में 18 घंटे काम करते थे। 18 घंटे। वो जो मोक्ष शास्त्र है ना, मोक्ष शास्त्र सबसे अंतिम अनुवाद कृति उनका, रामजी भाई का टीका 700 पेज 93 डेज में अनुवाद किया है। 93 डेज में 700 पेज का, जैसा है वैसा देख के लिखना भी हमसे नहीं बनेगा। प्रयास करेंगे तो जैसा है वैसा अनुवाद करके नहीं लिख सकते हैं आप। 93 डेज में 700 पेज। धर्म अपने आप नहीं आता, शोक करने से, शोक क्या बोलते हैं, अभिनय करने से धर्म नहीं आता। वासस्थान बदल लिया, घर से यहाँ आ गए, वेश बदल लिया, भोजन भी बदल लिया, 2 बार लेना तो एक ही बार ले रहे हैं। होता है धर्म। सब जगह पंच स्थावर भरा हुआ है, उसी में जाने का मन हो तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। जितना पाप का गठरी बड़ा हो जाएगा उतना हमें ही ताप होगा ना भविष्य में। और एक बात उन्होंने बताई, पाप भी इतना ही करना जितना आप ले जा सके, ढो सके उतना ही बनाना। पाप भी अधिक नहीं बनाना, जितना आप ले जा सकते हैं, ढो सकते हैं उतना ही। धर्म तो बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन पाप तो उतने ही कमाना।
जितना आप ढो सकते हैं। ये पानी का, फैन का, बिजली का, ये तो बहुत निश्चित ही ये सब आपने जो बताया पुण्य से, वो पुण्य से नहीं, वो पुण्य छल करने वाला पुण्य है। हमें दिखाएगा तो सुख जैसा, लेकिन दिखाएगा पाप, दुख को दिखाएगा, हमें दिखाएगा, पहुंचाएगा दुख के स्थान। जितने पानी कम यूज करेंगे उतने हिंसा से आप बचेंगे। और फैन का तो जैनों के घर में फैन का प्रयोग ही नहीं करना। क्या आवश्यकता है पाप करने के लिए? सोच सोच के पाप कर रहे हैं हमें, जितना और अधिक कर सकता, जितना अधिक कर सकेंगे, जितना अधिक कर सकेंगे, ऐसा करेंगे तो भोगने में कितनी दिक्कत आ जाएगा। यही जीव रहेगा। अब जो सोच रहा है, अब जो सुख का आभास भोग रहा है, यही जीव उस टाइम रहेगा, इसी प्रकार का वेदन होगा। समय समय हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। जैनों को तो किसी भी प्रकार का पाठ पढ़ना नहीं, पाठ पढ़ाना नहीं, पढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का पानी, बिजली, पंखा, ये किसी भी प्रकार का, घर कितना होता है, घर के लिए कितने 24 घंटे के जीवन में कितने निरपराधी जीवों की निर्दयतापूर्ण हत्या करते हैं। निरपराधी, क्या अपराध है, वो भी जीना चाहते हैं ना। अब हमें कोई वो विराधना नहीं कर रहे, प्रतिकूल नहीं कर रहे हैं कोई भी जीव, लेकिन मनुष्य प्राणी होकर, बुद्धिशाली जीव होकर उन सब का हत्या चल रहा है हमारे जीवन में। हमारा मनुष्यपना कहाँ है? मनुष्यपना कहाँ है? सिर्फ शरीर बुद्धि से ही हो रहा है, अज्ञान से हो रहा है। आजकल के बच्चे तो बाहर बरसात बरस रहती है और अंदर फैन चालू रहता है, और रजैया दो रजैया ओढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये शिक्षण का महिमा है? ये अनार्य विद्या है? क्या है? सोच ही नहीं सकते, बता नहीं सकते। कोई पानी बरस रहा है, बाहर ठंड चल रही है और फैन फिर रहा है, दो रजैया ओढ़ लेते हैं। हर घर की कहानी है ना ये। बताने में कोई भी असमर्थ क्यों होकर बैठे हैं आप? किसी भी बात को बच्चों के लिए बताने में क्यों असमर्थ होकर बैठे हैं? क्यों मानते नहीं? मानते नहीं क्यों? व्यवस्था आपने ही बनाए रखी है घर में, तो गलती किसकी है? गलती हमारी है ना। एसी बिठाएंगे, हीटर भी हाँ, बिठाएंगे, हमने ही बिठाए ना वो सब। फैन किसने बिठाए? और शावर भी लगते, क्या के लिए शावर लगते बाथरूम में? सभी गलती माँ बाप का ही है। बच्चों की कोई भी गलती नहीं। सुविधा तो अपन देते हैं ना। बाद में बच्चों के नाम से रोना रोते हो ना, वो भी अपनी ही गलती है। हम मंदिर नहीं लाते, उन्हें पाठशाला नहीं भेजते, नमोकार मंत्र, दर्शन पाठ वगैरह नहीं सिखाते, हम भेजते हैं आंग्ल स्कूल में, और उसके लिए ट्यूशन रखते हैं। वो बच्चे जिद करते हैं, दादी मैं भी आऊंगी, दादी मैं भी आऊंगा, ऐसा बच्चे जिद करते हैं। नहीं, उसके माँ बाप भी नहीं छोड़ते, और ये दादी का भी लोभ है ना, वो सीखे। ये तो बाद में करना है, बाद में कैसे करेगा? बाद में शिक्षण कहाँ से आएगा?
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने की बात सुबह बताया ना उन्होंने। स्कूल की क्या है, हमें अन्याय अनीति से पैसा कमाना है और विशिष्ट स्कूल में भर्ती करना है बच्चों को। अधिक 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 फीस है तो भी अन्याय से कमाते हैं, उसी लिए उसके लिए ही कमाते हैं। विशिष्ट स्कूल में ही भर्ती करना है। शिक्षण कितना चाहिए। आज सुबह गुरुदेव के प्रवचन में क्या गया, क्या आ गया, 10वीं पास करने के लिए 10 साल गंवाना पड़ता है। आत्मकल्याण के लिए कितने काल है आपके पास। विद्यार्थी जीवन में 10 साल 15 साल 20 साल तो है ना, संपूर्ण समर्पित है। बाद में उस विद्या से, उस कुविद्या से धन कमाना है। बाद में क्या करना है, बाद में औषध लेना है। न्याय मार्ग से कमाएंगे तो औषध के लिए पैसे नहीं आएगा और औषध की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय मार्ग से अनावश्यक धन नहीं आएगा। न्याय मार्ग से कमाएंगे तो, और मूल में ही है ना, अन्याय अनीति अभक्ष्य से बचना। ऐसा जीवन करेंगे तो औषध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। क्यों, औषध के लिए धन ही नहीं रहेगा ना। आज तो सब परिस्थिति विपरीत हुआ है। गवर्नमेंट है और सब सुविधा दे रहे हैं। किसके लिए, वो पद पर बैठने के लिए, पद पर बैठे रहने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, और उसमें भी हम संतुष्ट है, भीख लेने में। सोचना जरा सा, ये सब जो है अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन में अनावश्यक पाप बंद होना चाहिए। अनावश्यक पाप, वो तो पानी की व्यवस्था करेंगे, उसकी बात अलग है, संस्था की बात अलग है। बरसात हुई है भाग्य से या दुर्भाग्य से, भाग्य से बरसात हुई है या दुर्भाग्य से, संस्था के भाग्य से और आपने दुर्भाग्य, हमारे दुर्भाग्य से। संस्था भी हमारे लिए सब सुविधा दे रहे हैं, हमारे दुर्भाग्य से सुविधाएं मिलती है दुर्भाग्य से। योग्य मार्ग में चलने की सीख मिलती है सद्भाग्य से। सुविधाएं मिलती है दुर्भाग्य से, योग्य मार्ग पर चलने की सीख मिलती है सद्भाग्य से। योग्य मार्ग पर चलते हुए जीव को सुख होता है, सुविधाओं से सुख कभी भी नहीं होता। दुर्भाग्य से मिला हुआ है, हीन पुण्य से मिला हुआ है। उच्च पुण्य से 3 ही पद मिलते हैं, इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर। हम सब भ्रांति में है, पुण्यवान है ऐसा। 3 ही पद धर्म के साथ, इंद्र पद मिलते हैं, चक्रवर्ती पद मिलते हैं, तीर्थंकर। बाकी सब हीन पुण्य, पापानुबंधी। सम्यक दृष्टि जीव को ही पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पुण्य का परिभाषा क्या है, पुण्य का परिभाषा क्या है, पुनातीति आत्मानम इति पुण्यम। पुनातीति, पवित्रता के ओर जो ले जाता है उसे पुण्य कहते हैं। पुनातीति आत्मानम इति पुण्यम। पाप की तरफ, नरक के तरफ, आकुलता के तरफ, कषायों के तरफ, कषायों के उद्विग्नता के तरफ ले जाते हैं, उसे पुण्य कैसे कहते हैं। बच्चों के भविष्य का वास्तविक ही आपको चिंता है तो यही शिक्षण देना चाहिए। जीवनोपाय तो मैं बताती हूँ, हर जगह बताती हूँ, मेरा ही विचार है। जैन कुल में उत्पन्न हुए जीव को जीवनोपाय नहीं मिलेगा, ऐसा संभव ही नहीं।
उतना पुण्य तो लेकर ही वो जैन कुल में जन्म लेता है। सेवा करना पड़े, दूसरों के घर जाना पड़े, नीच काम करना पड़े, ऐसा तो हीन पुण्य जीव जैन कुल में जन्मता ही नहीं। लेकिन अनेक प्रकार की वांछाएं होते हैं ना, उसलिए वो भी काम स्वीकार करता है, दूसरों के घर में जाकर काम करने का। अनेक प्रकार की इच्छा वांछाएं होती है, हमें टीवी लाना चाहिए, हमारे बच्चों को भी आंग्ल विद्यालय में भर्ती करना चाहिए, इसके लिए वो काम करते हैं। जीवनोपाय किसी भी जैन कुल में जन्मे हुए जीव को जीवनोपाय की समस्या नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। जैनत्व के ऊपर हमारा श्रद्धा ही नहीं, हम जैन ही नहीं ना। जैन किसे कहते थे? जिनेन्द्र देव के आज्ञानुसार सोच विचार कर, पहले आज्ञा प्रधानी होता है, बाद में उसी आज्ञा में चलते 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 अपने कल्याण मार्ग की परीक्षा स्वयं करता है और परीक्षा प्रधानी होकर सम्यक दृष्टि होता है। वो जीव जैन है। आगम में तो अनेक भाषा आती, अनेक परिभाषा आती है। जैनों में अनेक प्रकार है ना, क्या क्या है? जन्मधारी, नामधारी, भावधारी, ये है। हाँ, और पाक्षिक, नैष्टिक वो भी प्रकार है। लेकिन जैन की परिभाषा इतना ही है, जो मोह राग द्वेष को जीत कर अनंत चतुष्टयमय निज वैभव में अंतर्निमग्न है, उनकी आज्ञानुसार, उनके वचनानुसार जो जीव चलकर आगे परीक्षा प्रधानी बनकर अपने कल्याण मार्ग की अन्वेषण, अपने कल्याण मार्ग की प्राप्ति जो जीव करता है उसे जैन कहते हैं। धर्म बहुत सूक्ष्म है। अभी भजन में आया, वीतराग का रूप धारण करके भी निज रूप का अनुभव नहीं किया। वीतराग का रूप धारण किया, निर्ग्रंथ रूप धारण किया, लेकिन निज स्वरूप का अनुभव नहीं। राज कार्य सब छोड़ दिया और मंत्र तंत्र में लग गया। बहुत सूक्ष्म है बात। अपना कल्याण करना हो तो आप स्वयं सोचना है, अपना कल्याण करना हो, भव का सार्थकता करना हो, जैन कुल की सदुपयोग करना हो, तो स्वयं ही सोच सोच कर, शोध शोध कर जीवन करना, जीवन जगना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो नाम कर्म के उदय से, मनुष्य नाम कर्म के उदय से मनुष्य हुए हैं, उच्च गोत्र के उदय से जैन कुलोत्पन्न हुए हैं, आयु कर्म के उदय से जी रहे हैं। शेष हमारा क्या उसमें अधिकपना है? कोई भी नहीं। कल्याण होने वाला नहीं। जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। आए थे पुण्य लेकर, लेकिन जाएंगे कर्म लेकर। पुण्य और कर्म में क्या अंतर है? पुण्य और कर्म में क्या अंतर है? आए थे पुण्य लेकर, उत्तम कुल वगैरह लाए थे, जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? कर्म जहां ले जाएंगे वहां जाएंगे। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। संस्था के व्यवस्थापकों से इस प्रकार की सूचना हमारे कर्णपटल पर आना हमारे लिए बहुत लज्जास्पद बात है। कहीं भी जाओ उसके लिए, किसी भी जगह पे हाँ, कहीं भी जाओ, अपने घर में भी, अपने घर में भी भाई जी, अपने घर में भी। कल तो पहनाव के बारे में परसों बताया था, वो क्या पर्व दिनों के बारे में है या गजपंथा या तीर्थ क्षेत्र में कहीं जाते हैं तब के अवसर में वैसा पहनावा नहीं चाहिए, ऐसा है। देखिए, स्पष्ट कटु शब्द में कहेंगे तो शील का प्रति समय हरण होता है अयोग्य पहनावा से। क्या आवश्यकता है? वो तो दिखाने वाली वस्तु ही नहीं ना। क्या है वो? जम्बू स्वामी का पूर्व भव का कथा पढ़ना,
भवदेव और भावदेव, जम्बू स्वामी सुधर्म स्वामी हो जाते हैं, वही दोनों भाई। पूर्व भव का वो तो ब्राह्मण कन्या थी, भवदेव की पत्नी। कथा क्या है मैं कथा नहीं बताऊंगी, आप पढ़ना। जम्बू स्वामी चरित्र है ना, नाम तो सुना है, तो मंगा लेना कहाँ है और पढ़ना। किसी भी वस्तु की आवश्यकता, किसी एक विशिष्ट औषधि किसी राज्य या दिल्ली में मिलती है तो हम मंगाते हैं या नहीं? सब खोज करते हैं या नहीं? कहीं मिलते है, कौन लाया है, क्या करना पड़ता है, नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, सब प्रयत्न करते हैं। तो जम्बू स्वामी चरित्र मंगाना कहाँ है? ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन। नहीं मिलेंगे तो हम प्रिंट करके देंगे आपको हिंदी में। हमारे कन्नड़ में तो 2-3 एडिशन हो गए। हाँ, बताए, उन्होंने बताया दीदी ने। जम्बू स्वामी ब्राह्मण के, हाँ ये तो बड़ा है हमारा। खैरागढ़ वो एकदम शॉर्ट वो नहीं है उसमें। कुछ बताना, हमारे बहन बोल रहे हैं, हमारे साथी बहन, क्या बताना? आप सब सदुद्देश्य से घर छोड़कर आए हैं और ऐसी गलती करते हैं, कैसे बताना, क्या बताना, क्या उपयोग होगा आपके लिए? भवदेव और भावदेव भाई भाई थे, सुनना है तो सुन सकते हैं। भवदेव और भावदेव दोनों भाई भाई थे। भावदेव का विश्वास जिन मुनियों ने जो बताते हैं वैसा जैन धर्म अनुसार विश्वास था। भवदेव का विश्वास वैसा नहीं था, फिर भी भाई के अनुसरण वो करते थे। ऐसे करते थे। एक बार भवदेव का जो शादी हुआ था, नहीं, तब भावदेव ने जिन मुनि को आहार के लिए घर लाते हैं, आहार कराते हैं। आहार जैसा होता है वो तो आपके लिए बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भूले हुए हैं आप। उस भावदेव के घर में मुनिराज का आहार होता है। मुनिराज का आहार होने के बाद मुनिराज को थोड़े अंतर तक छोड़ने के लिए भावदेव जाता है ना, कमंडलू लेके, समझते हैं, आपके भाषा में बता रहे हो, कमंडलू लेके जाते हैं। वैसे तो मुनिराज अपने पिच्छी और कमंडलू किसी के हाथ में नहीं देते, लेकिन आपके भाषा में बताना हो तो कमंडलू लेके जाते हैं। दूर 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 जाने के बाद भी मुनिराज उन्हें वापस जाने के लिए नहीं कहते। तो उधर जहां उनका ठिकाना था, उनको बैठना था ध्यान के लिए, वहां बैठ जाने के बाद उन्होंने कमंडलू रखते हैं और मुनिराज उन्हें बोध देते हैं संसार की असारता का। तो वो भावदेव वही दीक्षा ले लेते हैं। भावदेव दीक्षा ले लेते हैं। इधर घर में भवदेव राह देखते हैं। तो बाद में पता चलता है भैया ने दीक्षा ले लिया। वो पता चलने के बाद भैया के इतना लक्ष्मण जैसा था, वो राम को जैसा लक्ष्मण था वैसा, वो भी गया और दीक्षा ले लिया। भवदेव भी नई शादी हुई थी, भवदेव की शादी नई हुई थी, लेकिन भैया दीक्षा ले लिया तो वो छोटा भाई भी दीक्षा ले लिया। तो उनकी पत्नी का पात्र बहुत बड़ा है। भवदेव की जो पत्नी नई शादी वाली, उन्हें पता चलता है पति ने दीक्षा ले लिया, तो हमारा क्या है? उनका पथ ही मेरा पथ, लेकिन दीक्षा मानी क्या, मुझे तो पता ही नहीं। ब्राह्मण कुल की थी, पता ही नहीं। वो घर में ही रहकर सब अभ्यास करने लगी, एकासन करने लगी, तप करने लगी, रस छोड़ने लगी, शरीर की ममता छोड़ने लगी। बाद में दीक्षा ले लिया।
कौन? भवदेव की पत्नी। पत्नी दीक्षा ले लिया, इस बीच 12-17 साल चले गए। ओ मुनि भवदेव भावदेव भी चले गए थे ना, उसी गांव में तो नहीं रहते, चले गए, हाँ विहार करके चले गए। बाद में कितने ही साल बीत जाने के बाद फिर वही गांव को आते हैं भवदेव। वो तो भवदेव दीक्षा, छोटा भाई दीक्षा लिया था ना, वो बाद में उसी गांव को आते हैं। मेरे याद में मेरे पत्नी ने बहुत दुखी हुआ होगा, ऐसा सोच रहा था वो। चलो एक बार देख आते हैं, एक बार देख आते हैं। आहार के लिए गए, आहार करके आए। आहार के लिए पहले वो मुनिराज जाते हैं, बाद में अर्चिकाएं जाते हैं, है ना ऐसे प्रथा। अर्चिकाएं बाद में जाते हैं, अर्चिका बाद में आहार लेके आए और मुनिराज को नमस्कार करने के लिए गए। तब वो भवदेव मुनि ने उसी अर्चिका से पूछा, इधर बहुत साल पहले 2 भाई रहते थे ना, भवदेव और भावदेव, 2 भाई रहते थे, उनका क्या हुआ? उन्होंने दीक्षा लिया ऐसे मैंने समझा, सुना है। मुनि का मायाचार देखो, ऐसा मैंने सुना है। हाँ महाराज, आपने सही सुना है। वो भी वो अर्जिका के मुख के तरफ नहीं देखा, लेकिन वो अर्जिका समझ गई यही भवदेव है, समझ गए। और उनकी पत्नी का क्या हुआ, ऐसा उन्होंने पूछा मुनि ने, भवदेव मुनि ने। महाराज, आप इतने साल मुनि दीक्षा अंगीकार करके भी साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। पत्नी के याद में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। वो जिस पत्नी को आप देखना चाहते हैं वो तो हाड़ मांस की पिंजरा है, और अब अत्यंत निस्तेज भी हुई है, रोगी भी हुई है, और आपके सामने अर्जिका के रूप में बैठी। वो भवदेव अपने पत्नी अर्जिका के रूप में था ना, थी ना, उसे नमस्कार करके उस समय से सच्चा मुनि बना। कथा विस्तार तो बहुत है, बहुत शार्ट करके बताया। विस्तार तत्व तो बहुत है, बीच बीच में बहुत ही तत्व है। और ये जो उद्बोधन करके और 2-3 पेज है, मैं 2-3 लाइन में बता दिया। ऐसे सतियों से, ऐसे धर्मी जीवों से हमारे स्त्री परंपरा सुशोभित है। जैसे अन्य लोग करते हैं वैसा हम जैनी गृहिणियों को नहीं करना चाहिए। अन्य लोग हमारे से सीख देखे, वो जैन महिलाएं कैसे है, कैसे सज्जन है। पहनाव से सील भ्रष्ट होता है, अपने अंदर वैसे भाव नहीं है, परंतु देखने वाले एक ही नहीं रहते ना। घर में तो ऐसे बैठते नहीं, ऐसे ड्रेस ढाल पहन के। इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है, शील भ्रष्ट हो रहे हैं पहनावा से, केशों से शील भ्रष्ट हो रहे हैं, सिर्फ लज्जा के। और दिखाने वाली वस्तु ही नहीं ना, कितनी असह्य है वो, कितनी विद्रूप है स्त्री का शरीर। उसका कथन संपूर्ण वो अर्जिका ने किया है, भवदेव की पत्नी ने। क्या क्या है, जिसे आप जो समझते हैं उसमें क्या है, जिसमें आप जो समझते हैं उसमें क्या है, सब विवरण है, पढ़ना चाहिए। इसलिए पहनावा सिर्फ पर्व में नहीं,
सिर्फ सिद्ध क्षेत्र या तीर्थ यात्रा में नहीं, हर घर हर घड़ी हर समय अपने पहनावा योग्य चाहिए। तो योग्य पहनावा बस एक साड़ी ही है। किसी भी अवस्था में, एक बार वो कल्पना दीदी के यहाँ वो वनिता बोधिनी शिविर था ना, उधर पहनावा के बारे में एक बार चर्चा आया था। पैरालिसिस हुआ तो, अंतिम बात बताते हूँ, पैरालिसिस हुआ तो वो गाउन वगैरह डालना चाहिए ना, साड़ी वगैरह पहनना नहीं होता। लेकिन उन्होंने बताया किसी भी हालत में साड़ी के अलावा अत्यंत सुविधाजनक पहनावा कोई भी नहीं। लपेट देना बस, हौद्री अदे मात ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, बस लपेट देना। ये चूड़ीदार के लिए, ये गाउन के लिए भी हलाना पड़ते हैं, सिर्फ लपेट देना। शरीर इधर उधर करने की स्थिति में नहीं तो भी सारी लपेट देना। इतने तक कहते हैं। तो और एक संदेह उधर चर्चा में आया था, आजकल के बच्चे नहीं मानते, मम्मी आप ड्रेस डालो ऐसे बताते हैं। ये अपने को आज्ञा देने वाले बच्चे कौन होते हैं, ऐसे ही प्रश्न है उनका। हमें सिखाने वाले, माँ बाप को सिखाने वाले बच्चे कौन है? बच्चे पहले हैं या माँ बाप पहले है? माँ बाप अपने स्थान मान खो दिया है, इसलिए बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे करना पड़ रहा है। अपने स्थान मान रखना चाहिए ना, अपने कुछ है या नहीं। चलिए समय हो गया है, आवेश आ गया तो बहुत आ जाता है, तकलीफ बहुत हो जाती है। नीचे निधि